Very I good. think 15, 16 attendees have already joined. I think we should proceed this section. Yeah, This yeah. is We have more than 25. So, we can proceed with the session. So, first of all, very good evening and welcome our special addressee of the day, Amit Agarwal ji, along with the speaker for the day, Sunny Agarwal ji, and all the participant as well. So, sound is clear. first of all, I welcome to all you on another session of Golden Charcha hosted by EIRC. That is the initiative taken by the EIRC and the chairman on this Golden Jubilee conference occasion. We are conducting more than 50 sessions under this program that will be conducted every alternative days. So, three sessions per week, that is Monday, Wednesday, and Friday from 5 to 6 o'clock. So, with this, let us dive into very relevant topic and very exciting topic for the day. That is the automation of GST and other reconciliation process using artificial intelligence. So, Institute have a very focused and they are repeatedly giving very much sessions about the use of AI into the different field. So going into by that, we are posting today the session, the automation of GST and other reconciliation using the AI. For this, we have a speaker of the day, Sunny Agarwal ji. Along with him, I will first of all like to welcome Amit Agarwal ji as a special addressee to address all the participant as well as the speaker. Over to you, Amit ji. Thank you. Thank you, Amit. Myself, Amit Agarwal. I'm in practice since 2002, and I think these days AI is very important. And for one, both chartered accountant who is 10 years, 15 years, 20 years have passed it, their examinations, and they are in practice either in practice or in job. AI is very important uh, in these days, and if we do not cope up with the AI, we will be back in the practice field. So AI is very necessary, and what today's topic in this golden churcha is automation of various reconciliation using AI. AI that can be used by ChatGPT or cloud, any software, any AI can be used for this. Building your own HTML based software using Claude and ChatGPT, you can develop your own HTML software or you can develop HTML software through these AIs. That will be very helpful and update such software from time to time as per our need. As per our need, as and when need changes, we have to be updated. With the use of this I think many people will save time, effort, and their manpower. First of all, we are using this AI for the purpose of bank reconciliation statement. Earlier times, manually people were doing bank reconciliation manually. That will take big time, huge time, and efforts is also very large. But nowadays, using these softwares or AI or Excel based, people can do bank reconciliation statement in a minute or two. That is very effective tool. And accounting entries, which we are making in Tally, ERP, it can be done through use of all these AI, and it will be save our time and accuracy will be much more. GST reconciliation, in the GST reconciliation field, it this software is very much helpful. GSTR 2A, 2B, and our accounting entries can be reconciled with the help of these tools, and accuracy will be very good. There, we are using HTML based software using ChatGPT or this cloud. There is many advantage with cloud.
there is many advantage with ChatGPT. Like image generation is very much helpful in the ChatGPT, which cloud does not provide. Like this, many other things are there which is helpful in cloud, like more context in knowledge based in cloud, but it is not available in ChatGPT. I think all these technical things will be shared by C.A. Sunny Agrawal. So I welcome C.A. Sunny Agrawal to present his speech in Thank introduction. you so much, Thank sir, for your wonderful address, and we thank you on behalf of EIRC for giving your time and efforts to address the session. So, proceeding further, without any further delay, I am pleased to welcome the speaker of the day, C.S. Sunny Agarwal ji. Mr. Agarwal possesses a decade of post qualification experience and has cultivated a robust expertise in the field of taxation with a particular focus on GST. After gaining valuable experience in manufacturing sector for 2 years, Mr. Agarwal embarked a new journey by establishing his own practice. He has specialized in tailoring his services to meet the needs of diversified clientele, including public sector unit, the hospital industry, as well as the pharmaceutical industry. Given his experience in GST and his forward-thinking approach to leverage technology in financial process, Mr. Agarwal is ideally positioned to lead us the discussion of the day how AI can be harnessed to automate GST and other reconciliation tasks. So, without any further delay, please join me in welcoming CA Sunny Agarwal to share his insight on automation of GST and other reconciliation using AI. Sir, the floor is yours. Over to you, Sunny Agarwal ji. Thank you, sir. Thank you, Amit sir. Thank you, Amit sir. Both the Amit sir, thank you very much for the opportunity and EIRC for giving me this opportunity. Am I audible? Yes, sir, Yes, you are yes, audible, sir. yes. Done. Okay, thank you. So without wasting much of a time, अपन सीधा चलते हैं सेशन के तरफ में. ठीक है. इस सेशन पे एक छोटा सा रूल बना लेते हैं. जो जो पार्टिसिपेंट रिप्लाई नहीं करेगा, दैट मीन्स वो एग्री कर रहा है. जो रिप्लाई करेगा, दैट मीन्स उसको वो एग्री नहीं कर रहा है, उसको कुछ और बोलना है. ये अपन इस सेशन का रूल बना के चलते हैं तो क्या इजी रहेगा. ठीक है. एंड नंबर 1. नंबर 2, सेशन हम लोग बनाएंगे जीएसटी रिकंसिलिएशन के इर्द गिर्द पे ही. तो हम लोग कितने जन ऑफिस में जीएसटी प्रैक्टिस करते हैं. जो रिप्लाई देगा वो नहीं कर रहा है, जो नहीं दे रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है. गिविंग बाय दिस, जो मैं बताया ना स्टार्टिंग पे कि अपन ये लॉजिक लेके चलते हैं. जो रिप्लाई देगा मतलब वो एग्री नहीं कर रहा है, जो रिप्लाई नहीं देगा वो एग्री कर रहा है. तो रिप्लाई कोई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, एक शो ऑफ हैंड्स है. दैट मीन्स भरत जी को छोड़ के सब कोई जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है. तो जितने भी जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, तो उनको एक इशू हमेशा आ रहा है, 7-8 साल से ही आ रहा है. इनफैक्ट 2021 से कुछ ज़्यादा आ रहा है. वो है जीएसटीआर टू बी वर्सेस बुक्स का रिकन्सिलिएशन. ठीक है. अब हम लोग अपने ऑफिस में इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं. रिकन्सिलिएशन को हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं, हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं. बहुत वाइडली ऑफिस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है वो है टैली. उसमें भी अभी नया फीचर आ रहा है, आ गया है. आई थिंक मैंने ट्राई नहीं किया है. उसमें आराम से टू भी इंपोर्ट होके रिकनसाइल हो जा रहा है. बहुत जन पेड सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं. ठीक है. विथ एवरीथिंग कीपिंग इंटैक्ट, एआई जब से आया है, आई वॉज वंडरिंग कि एआई हम लोग को इसमें कैसे हेल्प कर सकता है. सो एआई में एक फीचर है कि हम लोग उससे कोडिंग कर सकते हैं. कोडिंग करके हमने क्या किया है, हमने एक HTML का पेज बनाया है. वो HTML का पेज क्या कर रहा है, वो HTML का पेज हम लोगों को रिकन्सिलिएशन करके दे रहा है. सबसे पहले मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ, HTML दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर का. फिर उसके बारे में बात करेंगे. HTML थोड़ा सा है क्या, 5 मिनट. फिर उसके बारे में अपन उसको डेवलप करने में आगे बढ़ेंगे. मैं अपना आपको स्क्रीन शेयर जो है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? इज इट विजिबल? No, sir, it is not visible yet. अच्छा, ये इसको शेयर, अच्छा यहाँ पे शेयर करते हैं.
अभी दिख रहा है क्या? Yeah, now it is visible. अभी दिख रहा है ना? डन। तो ये एक HTML का पेज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये HTML का पेज वर्क कैसे करता है, फिर उसके बाद हमने इसको डेवलप कैसे किया, और हम डेवलप कैसे किया है वो तो आएंगे ही, साथ साथ हम लोग क्या करेंगे इस सेशन पे आप लोग से भी इस चीज को डेवलप कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेज खुलते सबसे पहले हमको बोल रहा है कि आप अपना नाम डाल दीजिए, तो जैसे ही आपका कोई भी क्लाइंट हो या आपका, जैसे मैं डाल देता हूँ अपना सनी अग्रवाल एंड कंपनी, ठीक है, ठीक है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करना है आपको। आप GSTN नंबर कुछ भी डाल दीजिए एक बार के लिए, ओके। ये आप रेट डाल दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट उसके बाद ये मेरे को टेम्पलेट मांगेगा, बुक्स का टेम्पलेट और ये टू बी का टेम्पलेट। बुक्स का टेम्पलेट आया, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, as per the notification মানে কেন কি ইন্টারেস্ট আছে আমাদের আর ডিপিপি লাইসেন্স আছে রিসিভার চলে उसके बाद टू बी का टेम्पलेट आया, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए ये है क्या और ये वर्क कैसे कर रहा है, फिर उसके बाद एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ये मेरा टू बी का टेम्पलेट यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में आ गया, आप लोग को दिख रहा है, और मेरे बुक्स का टेम्पलेट आ गया, सबको दिख रहा है ना? यस सर, इट इज विजिबल। डन डन, ठीक है। तो एक बार दोनों खोल के देख लेते टेम्पलेट में है क्या। अमित सर आपको विजिबल नहीं हो रहा है क्या? चैट जीपीटी विजिबल हो रहा है? सिर्फ चैट जीपीटी विजिबल है आपका, वो सर सेकंड पार्ट ऑफ द बुक है ना। मतलब आप पूरा अपना डेस्कटॉप शेयर कर लोगे तो सर तो विजिबल हो जाएगा वो। ये पूरा डेस्कटॉप ही शेयर किया आई थिंक मैंने इसको, स्टॉप एज द शेयर। अभी दिख रहा है क्या? ना, नाउ द टेम्पलेट इज विजिबल। ओनली टेम्पलेट इज विजिबल। यस ये कैसे करते हैं? सर, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो सर? मतलब यू वांट टू शेयर बोथ द स्क्रीन? नहीं, आई वांट टू शेयर माय इंटायर डेस्कटॉप एज इन, मतलब सो डेस्कटॉप पे यही खुला हुआ होगा सर, आपका यही फाइल खुला डेस्कटॉप में हुआ मेरा होगा। भी बुक्स टेम्पलेट खुला है, आपको भी क्या दिख रहा है मेरे आपके मेरे स्क्रीन पे? शेयर किया है सर, फिर आपने एक्सेल फाइल दिख रहा है सिर्फ। एक्सेल फाइल दिख रहा है ना? हाँ, बस मैं वही दिखा रहा हूँ अभी। ओके। ओके। हाँ, जैसे ये हमारा बुक्स का एक्सेल फाइल है, ठीक है, जो कि मेरे को टूल से मिल रहा है। ये इसका फॉर्मेट अगर आप देखेंगे एज इट इज जो हमारे टैली के फॉर्मेट से निकलता है वैसा ही है। डेट, नेम ऑफ वेंडर, वेंडर GSTN, वाउचर टाइप, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST, ठीक है। अभी अपन चलते हैं टू बी का टेम्पलेट में। टू बी का टेम्पलेट कैसे दिख रहा है आपको? सीरियल नंबर, GSTN ऑफ सप्लायर, ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, जो भी आपका टू बी का जो फॉर्मेट आता है ऊपर में टॉप लाइन का, वो यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है अभी टू बी का? हाँ, इट इज विजिबल। टू बी वाला दिख रहा है ना? मतलब ये एक्सेल वाला जो बुक्स वाला एक्सेल है ना आपका, वो हाँ, वाला है। वो दिख रहा है अभी। अच्छा, हम्म, अभी क्या दिख रहा है? सर वही दिख रहा है। आई थिंक आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो सर, आप फाइल शेयर कर रहे हो शायद। नहीं, मैं तो स्क्रीन शेयर ऑप्शन पे गया हूँ। अभी क्या दिख रहा है? आई थिंक अभी मैंने सही सेलेक्ट किया है। अभी क्या हाँ, दिख रहा है? टूल इज विजिबल सर। अभी टूल्स दिख रहा है ना? ठीक है, अभी क्या दिख रहा है सर? जस्ट एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सॉरी। ओके, नाउ द होल थिंग इज विजिबल नाउ। हाँ, अभी होल थिंग है ना, तो शायद think मैंने गलत से सेकंड ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करा था। चलिए ठीक है, ओके, डन। तो ये मेरा टू बी का पूरा फॉर्मेट है जो कि हम लोग को टू बी पोर्टल से निकलता है, GST के पोर्टल से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डेटा पुट करेंगे। डेटा पुट करने के बाद में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में एक बटन है रिकंसाइल, उसको क्लिक करेंगे तो रिकंसिलेशन हो जाएगा। अपन सबसे पहले डेटा पुट कर लेते हैं फटाफट।
ठीक है, उसके बाद इसको बनाएंगे कि ये बना कैसे है। ये मैंने कुछ सैंपल डेटा बना के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, इस पे हम लोग इनवॉइस नंबर उठाए, डाल दिए इनवॉइस नंबर। पार्टी का जीएसटीएन उठाए, पार्टी का जीएसटीएन डाल दिए। टैक्सेबल सी जीएसटी उठाए, डाल दिए। डेट भी डाल देते हैं एक बार को। तो ये हमारा बुक्स का रेडी हो गया टेम्पलेट। सेम डेटा को अपन टू में डाल देते हैं। ये तो हो गया इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया। ठीक है, हमारा टू बी और बुक्स का डेटा दोनों का रेडी हो गया है। अपन एक काम करते हैं, खाली टू बी में ये दो तो इनवॉइस खाली हटा देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा कुछ डिफरेंस आ जाए, ताकि हम लोग समझ पाए कि ये मेरा काम कैसे कर रहा है। और इनवॉइस नंबर टू को मैं 2A कर देता हूँ, तो मेरा 3 गलती हो गया। और इसमें से मैं काम करता हूँ, माइनस नेट करता हूँ, मतलब मेरा इनवॉइस नंबर 0 1 2 3 ये चार में डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, एक बार टेस्ट डेटा के हिसाब से, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये टूल वर्क कैसे कर रहा है। हो जाने के बाद में हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। डेटा हमारा रेडी हो गया। बुक्स टेम्पलेट, टू बी टेम्पलेट। अब देखिए मेरा रिकनसाइल बटन एक्टिव हो गया, इसके पहले एक्टिव नहीं था। अब हम लोग इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए रिकनसाइल हो गया। अब अपन इसको खोल के देख लेते हैं ये क्या दिखा रहा है। देखिए इसमें अब 4 शीट दिखा रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन अभी, अमित सर? यस सर, इट इज विजिबल सर। अब प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने रिकंस्ट्रक्शन वाला शीट खोला, देखिए इसमें 4 शीट दिख रहा है, एक बुक्स डेटा, टू बी डेटा, और ये नॉट फाउंड इन टू बी, मतलब मेरे बुक्स में है लेकिन टू बी में नहीं है, मतलब 0 1 2 3 इनवॉइस नंबर, क्योंकि मैंने टू बी में 4 इनवॉइस नंबर में छेड़खानी की थी। और नॉट फाउंड इन बुक्स में मैं खाली ये दो, क्योंकि 2A मेरे बुक्स पे नहीं है और इनवॉइस नंबर 3 का अमाउंट मेरे बुक्स से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो विद इन अ सेकंड आप देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया ये रिपोर्ट डाउनलोड होकर आ गया, किस किस में डिफरेंसेस है। ये दो बुक्स डेटा एंड टू बी डेटा तो आपका अपलोडेड डेटा है, और ये दो डेटा आपका रिकनसाइल्ड डेटा है। ठीक है, तो अब ये इतना इजी और इतना आराम से बन के आ गया। ठीक है, ये है कमाल HTML का। ठीक है, अब ये HTML होता है क्या है, थोड़ा सा एक बार इनसाइट समझ लेते हैं। HTML क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म से अपने को कुछ ज्यादा खास करना नहीं है। ये चलता है बैकग्राउंड में कोडिंग के हिसाब से। जैसे अगर आप मैक्रोज, अगर आप एक्सेल में काम करते हैं, जैसे मैक्रोज कैसे काम करता है, आप कुछ कोड लिख दिए, मैक्रोज का स्टेप्स का कोड लिख दिए, आप जैसे ही मैक्रो परफॉर्म करते हैं, बैकग्राउंड में पूरा कोड रन होके रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक उसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने चैट जीपीटी या फिर क्लाउड के पास। ठीक है, जिसके पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, आप चैट जीपीटी लॉगिन कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है, आप क्लाउड भी लॉगिन कर सकते हैं और चैट जीपीटी भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, तो मैं चैट जीपीटी लॉगिन कर लेता हूँ। आप लोग अपने अपने स्क्रीन में लॉगिन कर लीजिए। 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। आप लॉगिन करने के बाद हमको बताइए चैट बॉक्स पे कि लॉगिन किस किस का हो गया, किस किस का नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हाँ, चैट जीपीटी फ्री वाला भी चलेगा सर। बस चैट जीपीटी का फ्री वर्जन में एक चैलेंज ये रह सकता है कि 5-6 टेक्स्ट के बाद में वो शायद ना चले। फ्री वर्जन भी चलेगा। हम लोग इनफैक्ट एक दो HTML फ्री वर्जन में भी बनाए हुए हैं, जस्ट टू टेस्ट कि कितना दिन में कितना जल्दी जल्दी वो बन जाता है। आराम से बन जाएगा, फ्री वर्जन में भी चल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल जाएगा सर। ओके, सबने लॉगिन कर लिया है क्या? ओके, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ इसमें करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको याद होगा, जीएसटी का रिकंसिलिएशन कुछ ऐसा स्पेशल रिकंसिलिएशन तो है नहीं। रिकंसिलिएशन इज रिकंसिलिएशन। हम लोग क्लास 11-12 से स्टार्ट करके रखे हुए रिकंसिलिएशन का टॉपिक। पहले हम लोग करते थे बैंक रिकंसिलिएशन, फिर आर्टिकलशिप आते आते स्टार्ट हो गया स्टॉक रिकंसिलिएशन, डेटर रिकंसिलिएशन, अभी चल रहा है टू बी का रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है। एक सेट ऑफ दो सेट ऑफ डेटा है, दोनों को एक दूसरे से मैच करना है, जो डिफरेंस है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो जीएसटी रिकंसिलिएशन ऐसा कुछ रिकंसिलिएशन है नहीं जो कि आप डिफरेंट है या फिर न्यू टू द टॉपिक है। इट इज अ रिकंसिलिएशन जो कि आईटीसी का रिकंसिलिएशन है खाली। ठीक है, अभी अगर आप चैट जीपीटी में अगर आप लोग अगर हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का टैब बन रहा है। आप लोग एडवाइजेबल है, अगर आपका पेड वर्जन अगर है तो आप लोग कुछ भी डेवलप करेंगे तो इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाकर डेवलप करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में और ये नॉर्मल चैट्स में क्या डिफरेंस आपका आ रहा है? नॉर्मल चैट में क्या है ना, आप 5-6 सेशंस तक आप चला रहे हैं, उसके बाद 1-2 घंटा का हॉल्ट हुआ, उसके बाद आप दोबारा से उसको यूज़ करने का चेष्टा करेंगे, तो वो सेशन इनवैलिड हो जाता है। लेकिन न्यू प्रोजेक्ट्स में क्या है, ये 30-35 डेज़ तक इसमें चैट एक्टिव रहती है। तो आप कुछ भी बिल्ड कर रहे होते हो, तो उसमें आपको टाइम चाहिए। तो अगर आप चैट यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि एक सिंगल सिटिंग पे आपका वो चीज़ डेवलप ना हो। ठीक है? इसीलिए एडवाइजेबल रहता है कि आप कुछ अगर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो न्यू प्रोजेक्ट्स में करें। हम लोग न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेते हैं, जिसका अगर न्यू प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, अगर वो शायद पेड वर्ज़न में अगर नहीं है, तो शायद नहीं दिखेगा। फ्री वर्ज़न में आप नॉर्मल चैट में कर लीजिए, बन जाएगा। उसमें भी आपको क्या ऑप्शन करना है, उसमें क्या रेमेडी अवेलेबल है, मैं आपको वो लास्ट में बताता हूँ। ठीक है? अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप प्रोजेक्ट को कुछ भी नाम दे दीजिए, जीएसटी आईटी रिकंसिलिएशन बिल्डर दे दीजिए या फिर एचटीएमएल बिल्डर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। नाम आप कुछ भी दे दीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके तक ही नाम रहने वाला है। उसके बाद आप क्लिक करिए क्रिएट प्रोजेक्ट पे। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक नया टैब ओपन हो गया है, जीएसटी आईटीसी रेको एचटीएमएल बिल्डर। आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको यहाँ पे 2 टैब और दिख रही है कि अगर आप कुछ फाइल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए, या फिर आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी डेवलप करता हूँ, तो मैं एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑलवेज डाल देता हूँ, ऑलवेज गिव मी फुल्ली डिबग्ड रीटेस्टेड फाइल। मैं ये लाइन ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस में डाल देता हूँ। मैं कुछ भी बिल्ड करने का चेष्टा करता हूँ, तो ये ऑलवेज गिव मी फुल्ली डिबग्ड रीटेस्टेड फाइल, ये मैं लाइन डाल देता हूँ। इससे फिर क्या होता है, चैट जीपीटी कुछ भी डेवलप कर रहा होता है ना, वो खुद ही डिबग करता है इंटरनली, खुद ही उसको रीटेस्ट करके चेक कर लेता है कि हाँ, आपका जो भी कोड बन रहा है या आप कुछ जो भी बना रहे हैं, वो प्रॉपर बन गया। ठीक है, ये अगर आप बोलते हैं तो मैं ये लाइन को चैट में डाल देता हूँ। ये डाल दिए, तो ये सेव हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है अब। हम लोग स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल टूल बिल्ड करना। एचटीएमएल से देखिए कोडिंग से कोड इसमें लिखा जाता है। हम लोग कोडर तो है नहीं, तो ये काम हमारे लिए करता है एआई चैट जीपीटी। ठीक है, हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को बस ये मालूम है कि मेरे पास एक बुक्स का डेटा रहेगा, एक टू बी का डेटा रहेगा। ठीक है, और मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरे को ये पिक्चर इमेजिन करनी है कि मेरा रिकंसिलिएशन टूल दिखेगा कैसे। ठीक है,
हम उसमें नाम डाल देंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे, पीरियड डाल देंगे। ये सब ऑप्शनल फील्ड्स है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, आप सिंपल सिंपल बस खाली बुक्स अपलोड करके, टू बी अपलोड करके रिकंसाइल भी करवा सकते हैं। ये मैंने डाल के रखा हुआ है, ऑप्शनल फील्ड से ये है। और अच्छा बात इसमें ये है ना सर, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप फुल इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आप, ठीक है, जब चाहे तब ये कस्टमाइज हो जाएगा। अच्छा, टेम्पलेट का यहाँ पे दरकार क्यों पड़ रहा है अपने को सर? टेम्पलेट का यहाँ पे दरकार इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट अगर नहीं होगा तो ये टूल काम नहीं करेगा। जैसे कि सर अगर आप एक रोबोट को अगर आप बोल देते हैं कि सीधा जाना है, तो रास्ता में गड्ढा आएगा तो वो गड्ढा से कूद के जाएगा वो हम लोग की तरह ब्रेन यूज नहीं करेगा कि हाँ ठीक है गड्ढा आया तो साइड में चले। अगर उसको सीधा जाने का इंस्ट्रक्शन अगर मिला है तो वो सीधा ही जाएगा। तो उसको इंस्ट्रक्शन हम लोग दिए हैं कि भैया हम टेम्पलेट हम लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं खुद के लिए, कि भैया इसी फॉर्मेट में मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपका जो रिकंस्ट्रक्शन पैरामीटर है वो अलग अलग ना हो जाए, ठीक है। टेम्पलेट डालने के बाद में फिर बुक्स अपलोड करूंगा, टू बी अपलोड करूंगा, फिर रिकंसिलिएशन बटन क्लिक करूंगा, तो मेरे को एक अलग से नया रिकंसिलिएशन एक्सेल फाइल मिल जाना चाहिए। ये बैक ऑफ द माइंड में रखते हुए हम लोग अब बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड करने के लिए हम लोग चैट में लिखते हैं, आप लोग अपना चैट खुद से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई हैव 2 सेट्स ऑफ डेटा, आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ चलिएगा, ठीक है। आप लोग खुद भी बिल्ड करने का चेष्टा करिएगा। हो सकता है ये एक बार में बिल्ड हो जाए, हो सकता है एक बार में बिल्ड ना हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये एक फोल्डर में मैंने आपको रखा है, टोटल 15 आइटम्स इसमें आपको जो दिख रहा है आपको ना में, इसमें तो एक आईटी फॉर्मेट है ये वाला, इसको छोड़ दीजिए। 14 आइटम्स है इसके अंदर, दैट मीन्स ये 14 टूल ये और मैंने बनाए थे, सेम रिकंस्ट्रक्शन टूल ही, जो कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कि आपका एक बार में बन जाए, हो सकता है आपका एक बार में ना भी बने। तो उसके बाद में भी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले अपन इसमें चलते हैं। आई हैव 2 सेट्स ऑफ डेटा, वन इज बुक्स एंड अदर इज GSTR to be downloaded from GST portal. Both have following headers. अब हेडर्स को आप जो है मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हालांकि जब मैंने डेवलप किया था मैंने हेडर्स क्या किया था, हम लोग ने टैली से उसको आपका जो डी स्ट्रेटजी रिपोर्ट से जो आपका निकलता है ना GSTR 3B से ITC का डिटेल्स, तो उसका जो हेडर रहता है हमने वही हेडर लिया, कॉपी करके डाल दिया। बोथ है फॉलोइंग हेडर्स फॉर बुक्स और GSTR 2B। ये हेडर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिल्ड एन ऑफलाइन ऑफलाइन HTML टूल। ये ऑफलाइन HTML टूल क्यों सर, ये ऑनलाइन HTML टूल क्यों नहीं? ऑफलाइन HTML टूल इसीलिए सर बिकॉज ऑफलाइन क्या है, बहुत लाइट वेटेड रहेगा, आपका इंटरनेट हो चाहे ना हो ये टूल तब भी काम करेगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड एन ऑफलाइन HTML टूल वेयर इन यूजर विल, क्या करवाना है हम लोग को इनसे, विल कम एंड डाउनलोड 2 templates, namely books template and to be template, which will be downloaded from the HTML on click of respective buttons। ठीक है, ये लाइन का आपको मतलब समझ में आया है क्या? इसमें हमने चैट GPT को बोला कि आई वॉन्ट टू बिल्ड
एन ऑफलाइन HTML टूल वेर यूजर, जो कि आप आएंगे और आपको दो बटन दिया जाएगा, एक बुक्स टेम्पलेट के लिए, एक टू बी टेम्पलेट्स के लिए। जैसे कोई भी आप स्कूल में या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो आपको फॉर्म मिलता है ना कि आप पहले फॉर्म भरो उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, HTML टूल हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, यूजर विल fill the template and will upload the filled template in the tool in the respective buttons for reconciliation of both the templates। हमने इसमें क्या लिखा, यूजर क्या करेगा, आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं बस खाली क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले स्टेप्स दिखा दिया कि बॉस एक टूल खुलेगा जिसमें आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है। उसके बाद टेम्पलेट बनने के बाद उसको टेम्पलेट को अपलोड करके रिकंसाइल करना है। जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, मैं वही टूटा फूटा इंग्लिश में आई हैव ट्राइड टू गिव इट टू चैट जीपीटी सो दैट इट कैन बिल्ड द HTML कोड, सो दैट HTML कैन बी बिल्ड फॉर आवर रिकंसिलिएशन। ओके, तो मैंने बस यही किया है कि भैया मेरे को HTML टूल बनाना है। मैं बस फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बॉस मेरे को HTML टूल बनाना है जहाँ पे यूजर आएगा, उसको टेम्पलेट दिया जाएगा। टेम्पलेट में आने के बाद में यूजर अपना टेम्पलेट को पूरा फिल करेगा। फिल करने के बाद में वो टेम्पलेट को दोबारा अपलोड कर देगा टूल के अंदर में। एंड उसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ पे टाइप हो गया। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में चैट जीपीटी को रिकंसिलिएशन करना है, चैट जीपीटी को नहीं, सॉरी, टूल को रिकंसिलिएशन करना है, ठीक है। पहले इतना इस पर छोड़ के देखते हैं फिर वो क्या बोलता है। लेट अस सी वो क्या बोल रहा है। वो क्या बोलता है कि थैंक्स हैज द कंप्लीटेड डिबग एंड टेस्टेड ऑफलाइन HTML टूल, ये दे भी दिया ऑफलाइन HTML टूल बना के। हालांकि मैंने इसको अभी तक कुछ भी रिकंसलेशन लॉजिक बताया नहीं है कि रिकंसलेशन कैसे करना है, कौन से बेसिस में करना है, कौन से बेसिस में नहीं करना है। ये अपने मन से कुछ भी एक बना दिया है। एक बार ये जो भी बनाया है इसको एक बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने, ये देखिए ये खुद ही बोल दिया, लेट मी नो इफ रिकंसलेशन लॉजिक नीड्स टू बी मोर स्पेसिफिक। उसने क्या किया, व्हाट इज द अब हम लोग इससे पूछ लेते हैं व्हाट इज द रिकंसिलिएशन लॉजिक यूज्ड। यूज्ड हो सकता है कि आपका आंसर दूसरा है। बेस्ड ऑन आपका आंसर आप इसको आगे बढ़ते जाइए। अपन जो जो मेरे साथ है, जो जो बना रहे हैं वो बनाते रहिए, जो जो नहीं बना रहे सिर्फ देख रहे हैं, एक बार आप फिर इसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आप खुद भी ट्राई करेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस खाली जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके बैक ऑफ द सिनारियो में जो चल रहा है कि यहाँ ठीक है रिकंसिलिएशन ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा दिखना, ये यहाँ से इसको ये मैच करेगा, वहां से इसको ये मैच करेगा, मेरे को ऐसा रिपोर्टिंग चाहिए, आप इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट में डाल के दे दीजिए, वो आपको बना के दे देगा। अच्छा, प्रोजेक्ट यूज करने का खास बात ये भी है ना, जो मैंने बोला प्रोजेक्ट यूज करने के लिए, वो आपको इस तरीके से ऑप्शन देते रहेगा कि मैं ये कर दिया हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं कर दिया हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वो आपको चैट जीपीटी बोलते रहेगा। अच्छा, उसने क्या बताया कि if the matching row in GST are to be with same invoice number and GST, and if match kept assumed match, if not found mark it as not in to be, वो मार्क कर देगा। सेम फॉर टू बी नॉट इन बुक्स, उसके बाद में वो दो मेरे को आउटपुट शीट दे देगा। व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड, रिकंसिलिएशन लॉजिक में डेट मिसमैचेस नॉट कंसिडर्ड, टैक्स वैल्यू मिसमैचेस नॉट कंसिडर्ड, invoice type or RCM flag not considered, fuzzy fill not considered. Would you like me to add tax amount matching, date tolerance matching on invoice और RCM flag? देखिए ये क्या कर रहा है, चैट जीपीटी ने बता दिया कि भैया आपने जो मेरे को इनपुट दिया है, बेस्ड ऑन दैट इनपुट मैंने आपको एक ठो बना के दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद टेस्ट कर लेते हैं क्या बनाया है इसने। अगर आपके पास भी कुछ ना कुछ HTML बन के आ गया है क्या, एक बार आप खाली चैट बॉक्स में लिखिए ना, बताइए ना, किसी का चैट HTML बन के आया।
कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब गिवन बाय आवर लॉजिक विच वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट मिनट ऑफ द सेमिनार सबका बन के आ गया। Hopefully, yes. गिवन बाय दैट लॉजिक सर। Yes, sir. ओके, अगर HTML सबका बन के आ गया है, डाउनलोड भी अगर हो गया है, मेरे ख्याल से डाउनलोड मैंने किया था ना, ये नहीं डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, मेरा चैट जीपीटी कुछ ज्यादा बदमाश है, आपका चैट जीपीटी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है सर, पता नहीं मेरा वाला कुछ ज्यादा ही बदमाश है, ये बहुत बार डाउनलोड नहीं होने देता है। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर मैं क्या करता हूँ फिर, ठीक है, गिव मी दी HTML कोड। ठीक है, ये मैं उससे HTML कोड मांग लेता हूँ, फिर वो मेरे को कोड बता देगा कि उसने क्या कोड लिखा है। ये रहा कोड आ गया उसका। एक बार कोड को पूरा टाइप हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आगे। ये आप देख रहे हैं कितना कोड लिखा है उसने। हमने बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है उसको, उसने क्या क्या कितना सारा कोड लिख दिया उस चक्कर में। ये कोड आ गया, इस कोड को करेंगे कॉपी, हम लोग खोलेंगे नोट पैड। जब तक मैंने HTML सीखा नहीं था ना सर, मैं सोचता था कि नोट पैड यूज कहाँ करना है। HTML सीखने के बाद मालूम पड़ा कि नोट पैड यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। नोट पैड में आप इसको कॉपी कर लीजिएगा कोड को, यहाँ पे आपको कोड पे कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद में फाइल, फाइल के बाद में ऑप्शन आएगा आपके पास सेव एज। सेव एज में क्लिक करेंगे हम लोग, तो वो आपको पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है। यहाँ पे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर दीजिए, और आपको जो भी एच- नाम देना है आप दे दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, नाम देने के बाद में आज का डेट डाल के .html आपको एक्सटेंशन सेव करना पड़ेगा, बिकॉज ये HTML फाइल है, जैसे एक्सेल का होता है .xlsx, उस तरीके से HTML का है .html। आपको यहाँ पे ऐसे करके सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप में वो आ गया HTML बन के। देखिए ये HTML बन के मेरा आ गया। देखिए ये HTML जो अभी बना है और ये जो मेरा बना हुआ है, इस दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ, जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने बोला था कि बस मेरे को नाम भी डालना है, GSTN भी डालना है, पीरियड भी डालना है, सब कुछ डालना है। लेकिन मैंने इस वाले में कुछ बताया नहीं था, बस सिंपल खाली इसको बता दिया था कि बस दो टेम्पलेट मेरे को चाहिएगा, उस टेम्पलेट का फॉर्मेट ये रहा। उस फॉर्मेट में डालने के बाद में आप मेरे को यूजर उसको फिल करेगा, फिल करने के बाद अपलोड करके रिकंसिलिएशन बटन क्लिक करेगा और उसको रिपोर्ट आ जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, बुक्स टेम्पलेट मेरे एक बार डाल के चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं है। ठीक है, मोर और लेस सेम ही होना चाहिए जो मैंने बना के दिया था। एक बस खाली फॉर्मेट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फॉर्मेट तो सेम ही है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बुक्स एक्सेल में क्लिक किया, ये हमारा बुक्स जो हम लोग ने स्टार्टिंग वाले रिकंसिलिएशन में जब हमने यूज किया था वही वाला टेम्पलेट यहाँ पर डालते हैं। ये फिल टेम्पलेट से डालने के बाद में रिकंसिलिएशन बटन को क्लिक करते हैं। वाओ, रेडी। ये आई थिंक मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ट्राई में रिकंसिलिएशन बटन या कोई भी बटन क्लिक हो गया। और अगर आपको ध्यान हो तो देखिए हमने यही वाला ही किया था, इसमें भी कुछ कुछ एरर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको याद है, मैं हम लोगों ने 0 1 2 3 ये चार इनवॉइसेस में चेंजेस किए थे, राइट। जीरो, इनवॉइस नंबर 0 एंड इनवॉइस नंबर 1 हमारे 2B में नहीं था, तो यहाँ पर आ गया नॉट इन 2B में 1 एंड 0 और 1 तो आ गया। इनवॉइस नंबर 2 में हमने क्या चेंज किया था, इनवॉइस नंबर चेंज किया था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट इन बुक्स में इनवॉइस नंबर ये आ गया, मतलब ये 2B में ये इनवॉइस नंबर है, 2A में
नॉट इन टू बी मतलब ये बुक्स में है लेकिन टू बी में नहीं है। तो मेरे बुक्स में इनवॉइस नंबर 2 है लेकिन टू बी में नहीं है, मतलब मेरे बुक्स में ये 3 इनवॉइसेस है लेकिन टू बी में नहीं है। और मेरे बुक्स टू बी में ये इनवॉइस है जो कि बुक्स पे नहीं है। ठीक है, तो एज फार एज इनवॉइस मैचिंग इज कंसर्न ये मैच हो गया। बस इनवॉइस नंबर 3 में हमने एक और चेंज किया था, जो किया था वैल्यू में, उसने इसको रिकंसिलिएशन में नहीं लेकर आया। अब हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के तरफ में, इसने इसको रिकंसिलिएशन में क्यों लेकर नहीं आया। इसने बोल भी दिया था, मैंने जान के इसको ठीक भी नहीं किया, कि डू यू वांट टू मैच द टैक्स वैल्यूज या इनवॉइस वैल्यूज। ये रहा, सॉरी, अगर आपको दिख रहा है व्हाट नॉट कंसीडर्ड, इसने टैक्स वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया था, राइट। तो इसीलिए उसने, जो हमने इनवॉइस नंबर 3 में जो अमाउंट चेंज किया है, उसने इसको कंसिडर नहीं किया। वो बस खाली क्या कंसिडर किया, जीएसटीएन नंबर चेंजेस एंड इनवॉइस नंबर डिफरेंस अगर चेंजेस अगर है आपके बुक्स एंड टू बी में, तो वो। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस एचटीएमएल इज गुड, इज वर्किंग गुड, गुड या फाइन, जो लिखना है लिख दीजिए, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इट इज नॉट मैचिंग द टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट्स। आपका जो प्रॉब्लम है आप इसको खाली बता दीजिए, ये खुद ही आपको सॉल्यूशन करके देगा। ठीक है, ये बता भी दिया कि भैया यू आर राइट, द करंट रिकंसिलिएशन ओनली मैचेस इनवॉइस नंबर एंड जीएसटीएन नंबर एंड इग्नोर्स टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट्स। ठीक है, अब वो क्या करने वाला है वो लिख दे रहा है कि वो क्या फिक्स करेगा क्या फिक्स नहीं करेगा। एक बार आप इसको गो थ्रू करिए, क्या वो फिक्स कर रहा है क्या फिक्स नहीं कर रहा है। इनवॉइस नंबर फिक्स कर रहा है, चेक करेगा, जीएसटी नंबर चेक करेगा, टैक्सेबल वैल्यू भी चेक करेगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब कुछ चेक करेगा वो। अब ये मेरे को दोबारा से अपडेटेड एचटीएमएल कोड दे रहा है मेरे को, एक बार ये कोड दे देता है, फिर इस कोड को एक बार दोबारा से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके देखते हैं कि क्या इसमें आ रहा है। ये समरी, नेक्स्ट ऑप्शन भी हमसे पूछ रहा है समरी शिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, पार्शियल मिसमैसेज चाहिए कि नहीं चाहिए। अपन ये सब अभी कुछ नहीं करते हैं, अपन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये वाला कोड काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको डिलीट किया, नया कोड को पेस्ट किया, फाइल, सेव एज, ऑल फाइल्स। अब 0108-02.html कुछ भी आप नाम डाल दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे आपने नाम डाला देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये नोटपैड को आपको सेव वेव कुछ भी नहीं करना है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कहीं सेव नहीं किया है, एक नया एचटीएमएल बन के आ गया मेरे सामने रेडी। मैं बाकी सबको पहले क्लोज कर दूं, दोबारा से खोलूं। मैं इसमें कुछ भी टेम्पलेट डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्पलेट वही होगा, बिकॉज चेंज नहीं हुआ होगा, मैंने टेम्पलेट चेंज करने नहीं बोला था। अब करते हैं बुक्स टेम्पलेट अपलोड, क्योंकि ये फील्ड वाला है और ये मेरा टू बी टेम्पलेट अपलोड। अब अपने को देखना है कि इसमें इनवॉइस नंबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है एरर पे। रिकनसाइल बटन में क्लिक किया, क्लिक होते ही रिकंसिलिएशन हो गया। ओपन कर लेते हैं, वो खुला हुआ है इसलिए नहीं खुलेगा, मैंने इसको क्लोज कर दूं पहले। अब दोबारा खोलते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा ही चेंजेस आ गए, इसमें पूरा ही उठा के डाल दिया है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कुछ एरर आ गया होगा कहीं पर। ये इनफैक्ट इसने रिकंसिलिएशन में 1 और 2 खाली हटा दिया और कुछ भी नहीं हटाया। तो देखिए ये वाला जो इसने दोबारा एचटीएमएल अपने को बना के दिया है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये लेके हमारा 2 एचटीएमएल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको बोलेंगे कि दिस एचटीएमएल इज नॉट वर्किंग विथ गिवन reconciliation logic, retest, debugged, debug it, and give complete code again.
ओके, माइन इज जस्ट गिविंग द मिसमैच डेटा, मैच डेटा इज नॉट देयर। हाँ ठीक है, अच्छा है। आप चाहे तो उस HTML को, आपको मैच डेटा अगर आपको चाहिए अरिजीत जी, तो आप उसमें चैट जीपीटी को वापस HTML अपलोड करके बोल सकते हैं कि ये खाली मिसमैच डेटा दे रहा है, मैच डेटा आपको अलग डेटा कहीं पे दे दे, अगर आपको चाहिए तो वो आपको वो कस्टमाइज करके ये फिर से कोड लिख के आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कोड आ रहा है हम लोग के लिए। हाँ, कोड इज रेडी। कॉपी करते हैं, नोटपैड डालते हैं, पेस्ट फाइल, सेव एज ऑल फाइल्स 0108-01.html। इसको क्लोज किया, ये HTML हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको खोलेंगे, और कोई खुला हुआ नहीं था, नहीं था। खोलते हैं, दोबारा से अपलोड करते हैं फिल डेटा, टेम्पलेट टू बी टेम्पलेट, रिकनसाइल, क्लिक करते हैं, रिकनसाइल हो गया, ओपन। अब ये प्रॉपर आ गया। देखिए, हमने 4 इनवॉइस में मिस्टेक किए थे। नॉट इन टू बी मतलब मेरे बुक्स पे है, बुक्स में हमने कुछ भी छेड़ा नहीं था, 0123 ये आ गया। नॉट इन बुक्स मतलब मेरे 2B में है, मेरे 2B में इनवॉइस नंबर 2A है और 3 है। 3 मेरे इसमें भी है, लेकिन इसमें टैक्सेबल वैल्यू 27027 है, और इसमें टैक्सेबल वैल्यू डिफरेंट है। तो देखा हमने, बस 3 ट्राई में अब की बार ये हमारा HTML वर्किंग मोड में आ गया। अब ये आप इसमें आप कुछ भी लॉजिक डालो। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको दोबारा से क्लोज करते हैं, ये सब को डिलीट करते हैं, सैंपल डेटा को छोड़ते हैं, वापस आते हैं। अब हम लोग करते हैं बुक्स टेम्पलेट डाउनलोड, दोबारा से कुछ कुछ नई नई गलतियां के साथ काम करेंगे। सेव एज बुक्स टेम्पलेट, GSTR2B, सेव एज टू बी टेम्पलेट। ठीक है, सैंपल डेटा को खोलते हैं, बुक्स टेम्पलेट को पहले खोलते हैं, डेट, कॉपी करके डेट डाला, वेंडर का GSTN डाला, इनवॉइस नंबर डाला, टैक्सेबल को उठा के डाला, सेव करते हैं। अब की बार बुक्स में कुछ गलती करते हैं, एक काम करते हैं, बुक्स में इनवॉइस नंबर 0 को हटा देते हैं, इनवॉइस नंबर 1 में इसको 200 रुपए से माइनस कर देते हैं एक बार को। इनवॉइस नंबर 3 का GSTN नंबर में चेंज करते हैं, 2 में करते हैं, सॉरी, 2 में 5 के जगह 6 करते हैं। ओके, अब की बार हमने बुक्स में क्या चेंज किया है, इनवॉइस नंबर 0 को हटा दिया है, 1 में चेंज किया है टैक्सेबल वैल्यू को, और इनवॉइस नंबर 2 में चेंज किया है GSTN नंबर को। सेव, सेव कर दिया, बुक्स टेम्पलेट रेडी। अब हम लोग करते हैं GSTR2B का टेम्पलेट को रेडी। ठीक है, GSTN देते हैं, इनवॉइस नंबर देते हैं, इनवॉइस डेट देते हैं,
सीधा टैक्सेबल में आ जाते हैं। अच्छा, ये सब फील्ड्स को जब मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सीरियल नंबर हो, चाहे ट्रेड नेम हो, चाहे इनवॉइस टाइप हो, चाहे इनवॉइस वैल्यू, जैसे सप्लाई सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज और नॉट, तो भी ये वर्क कर रहा है। ये क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि हमारा रिकंसिलिएशन, ये टूल कर क्या रहा है? ये टूल कर रहा है मेरे को बुक्स को और टू बी को रिकंसाइल कर रहा है। ये टूल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपका सारा चीज फिल रहे। ये टूल्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस चीज को लेकर वो रिकंसाइल करने वाला है, एटलीस्ट वो डेटा इसमें फिल रहे। जैसे वो रिकंसाइल क्या कर रहा है? जीएसटीएन नंबर, इनवॉइस नंबर और वैल्यू को, ये तीन चीज को रिकंसाइल कर रहा है, राइट? तो इसीलिए उसको वो चीज नहीं चाहिए कि आप बाकी सब भी भर लो। अब हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें इनवॉइस नंबर 4 को उड़ा देते हैं। टू बी में एक गलती करते हैं हम लोग, इनवॉइस नंबर 4 को उड़ा देते हैं और इनवॉइस नंबर 5 को का जीएसटीएन चेंज करते हैं और इनवॉइस नंबर 6 का इनवॉइस नंबर चेंज करते हैं। तो हमने बुक्स में 3 गलती की है और टू बी में 3 गलती की है। अच्छा, एक काम करते हैं, टू बी में गलती और कर देते हैं, वरना ऐसा ना लगे कि आप बोलेंगे कि भाई 3:3 है इसलिए मैच हो गया। हमने टू बी में 4 गलती कर दी, ठीक है? हमारा टू बी भी रेडी है टेम्पलेट और बुक्स का टेम्पलेट भी रेडी है। ये सबको क्लोज करते हैं, मेरा कोई भी अब टेम्पलेट खुला हुआ नहीं है। दोबारा से अपने टूल को खोलते हैं। टूल को खोलने के बाद में मेरे को टेम्पलेट डाउनलोड करने का दरकार है नहीं, बिकॉज मेरे पास टेम्पलेट डाउनलोडेड भी है और फिल्ड भी है। बुक्स वाले एक्सेल को अब हम लोग आएंगे, चूज फाइल में क्लिक करेंगे, बुक्स का टेम्पलेट अपलोड किया, टू बी का टेम्पलेट अपलोड किया, रिकंसाइल बटन में क्लिक किया, क्लिक करते ही रिकंसिलेशन हो गया। ओपन करते हैं। अगर आपको याद हो, 6 इनवॉइस में अपने गड़बड़ किए थे या 7 में, इसमें तो यहाँ भैया 6 ही आया, मेरे को तो 7 ध्यान है। एक बार देखते हैं क्या क्या गड़बड़ है। नॉट इन टू बी मतलब मेरे बुक्स में ये है, टू बी में नहीं है। मतलब मेरे बुक्स में इनवॉइस नंबर है 1, लेकिन टू बी में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे 1 में इनवॉइस नंबर 1 का वैल्यू है 14060, टू बी में उसका वैल्यू है 260, इसलिए नहीं है। तो 1 वाला तो मैं सही रहा। इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे। ये वाला डिस्कस हो गया, ठीक है? इनवॉइस नंबर 0 मेरे नॉट इन बुक्स में दिखा रहा है। अगर आप नीचे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, नॉट इन बुक्स में दिखा रहा है इनवॉइस नंबर 0, लेकिन नॉट इन टू बी। नॉट इन टू बी मतलब मेरे बुक्स पे है, मेरे बुक्स में इनवॉइस नंबर 0 है, कुछ भी एरर नहीं है। लेकिन इसमें दिखा रहा है टू बी में आपका इनवॉइस नंबर 0 है, लेकिन आपके बुक्स पे नहीं है, जो कि हमने डिलीट किया था। आपको याद आ रहा है? दिस इज अ काइंड ऑफ माइंड बोगलिंग, लाइक नो मोर का झंझट, प्लीज ट्राई टू रैप इट इन 5 मिनट्स। बस सर, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया सर। टेस्ट कर रहा था, टेस्ट हो गया। इनवॉइस नंबर 0 हमने क्या किया था, बुक्स से डिलीट किया था, इसलिए यहाँ पे आ गया कि भाई आपका इनवॉइस नंबर 0 बुक्स पे रही है। इनवॉइस नंबर 1 में हमने डिलीट नहीं किया था, चेंजेस किया था, इसलिए दोनों जगह आ रहा है कि भैया मेरे टू बी के हिसाब से मेरा ये बुक्स के हिसाब से इनवॉइस 1 का ये डिटेल है, लेकिन टू बी के हिसाब से ये डिटेल है। इनवॉइस नंबर 2 में हमने क्या किया था, इनवॉइस नंबर 2 में हमने जीएसटीएन नंबर को चेंज किया था। इसमें लास्ट में 6 कर दिया था, अगर आपको याद है तो। ये देखिए लास्ट में 6 है और इस पे लास्ट में 5 है, राइट? तो इनवॉइस नंबर 2 का गड़बड़ी भी ठीक हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, तो अपना 3 गलती आइडेंटिफाइड हो गया। बैलेंस 4 5 6 7 आपको दिख ही रहा है, ठीक है? दैट मीन्स आप हमने 7 इनवॉइस में जो भी करेक्शन, जो भी गड़बड़ की थी, वो प्रॉपर यहाँ पे आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आप ये क्लाइंट को उठा के दे दीजिए कि सर देखिए आपका टू बी में ये दिख रहा है, लेकिन बुक्स में नहीं है। प्रोबेबली या तो आपने एंट्री नहीं मारी, या तो सामने वाले ने गलत अपलोड कर दिया। जो बुक्स में दिख रहा है टू बी में नहीं है, आप उसका इनपुट ले सकते नहीं है। आप वेंडर्स को चेजअप करिए कि उसने टाइम पे फाइल किया है कि नहीं किया है। टाइम पे फाइल क्यों नहीं किया, अगर फाइल कर दिया है तो। अगर फाइल नहीं किया तो अब तक फाइल क्यों नहीं किया।
फिर आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन आंसर आराम से रेज़ कर सकते हैं। द पॉइंट हियर इज़ कि 14 तारीख का जैसे ही रात 12 बज रहा है सुबह, 13 तारीख का रात 12 खत्म होते ही जैसे 14 तारीख क्लिक हो रहा है, टू बी आपके सामने आ गया। सुबह आपको ऑफ़िस खोलना है, एक आर्टिकल या बंदा बैठाया, सबका टू बी डाउनलोड किया, ये टूल में जो टूल आपके लिए एकदम रेडी हो गया आपके लिए ये वाला टूल। अब आप इस टूल को चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो मन आप यहाँ पे आप बोलिए कि आई वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर इन द बॉटम एज़ कैन मेक एरर। ठीक है? बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। मैं बस खाली बोल रहा हूँ कि मेरे को इसमें डिस्क्लेमर ऐड करके देना है। ये फिर से आपको लिख के दे देगा पूरा कोड। नो, ओनली इन एचटीएमएल पेज पेज सॉरी। ठीक है? ये आपको डिस्क्लेमर दे देगा। जस्ट मेरे को और 2-3 मिनट लगेगा। नहीं, गिव कंप्लीट कोड। कोड आ गया, कॉपी, नोटपैड खोलेंगे, पेस्ट करेंगे, फाइल, सेव एज़ दिस। उसके बाद में 0108-02.html। हुँ, आ गया? ये रहा, इधर आ गया, सॉरी। बाकी सारा क्लोज़ कर देंगे। 02 वाला खोलते हैं। देखिए, अब इसमें डिस्क्लेमर आ गया, ठीक है? अब आपको इसमें और कुछ कस्टमाइज़ करना है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आज तो देखिए क्या है हमारा इसमें जो आप टू बी का टेम्पलेट अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सेम उसी फ़ॉर्मेट पे है, जिस फ़ॉर्मेट में आज के डेट में टू बी अवेलेबल है, ठीक है? बस खाली सीरियल नंबर नया ऐड किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है? आप चाहे देखेंगे तो ये जो फ़ॉर्मेट आपको ऊपर में दिख रहा है, हेडर जो है एक्सेल का, एकदम उसी फ़ॉर्मेट में है जिस फ़ॉर्मेट में टू बी अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको ध्यान होगा तो सप्लाई के बाद में सबसे यहाँ पे एक और कॉलम आया करता था रेट का, अब नहीं आ रहा है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं अब डिपार्टमेंट कुछ भी चेंज कर सकता है फ़ॉर्मेट में बट लेकिन ये 3-4 चीज़ तो कांस्टेंट रहेंगी ही रहेगी, जीएसटीएन नंबर, इनवॉइस नंबर और टैक्सेबल वैल्यू। इसीलिए हमारा रिकंस्ट्रक्शन का बेस भी वही है और ये होना भी चाहिए। तो कल के दिन अगर डिपार्टमेंट कुछ और एक नया कॉलम अगर ऐड करता है, आपको और कुछ नहीं करना है। ये एचटीएमएल कोड को दोबारा से डाल देना, एचटीएमएल को कॉपी कर देना है चैट जीपीटी पे या क्लॉड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाल दिए और उसको बोल दिए कि ये मेरा टू बी का जो टेम्पलेट है, आई वांट टू चेंज द टेम्पलेट विद दिस टेम्पलेट। आप उसको डाल देंगे, तो वो आपको चेंज करके दे देगा, तो उस तरीके से आपका कस्टमाइज़ेशन भी हो जाएगा। ठीक है? एक और टाइम परमिट नहीं करना है वरना मैं आपको एक और एचटीएमएल टूल दिखाता। जो कि है मैं ख बस खाली दिखा देता हूँ जो कि हमने बनाया है एक और, इनकम टैक्स का एचटीएमएल, ठीक है? इसमें क्या है सर, ये क्या करता है मेरे लिए, ये मेरे को बताता है कि मेरे को कौन-सा डिज़ाइन बेस्ट है मेरे लिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो मेरे को बता देगा कि 12,75,500 रुपए अगर आपका सैलरी है, तो ओल्ड डिज़ाइन के हिसाब से आपका इतना टैक्स लगेगा, न्यू के हिसाब से आपका इतना टैक्स लगेगा। तो बेस्ड ऑन दैट हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को ओल्ड डिज़ाइन चाहिए कि न्यू डिज़ाइन चाहिए। तो ये कैसे बना, कैसे नहीं बना, अगर 20 मिनट और होता तो शायद अपन इसको भी देख लेते। बट ठीक है, ये हमारा बट लेकिन ये जो रिकंस्ट्रक्शन का जो एचटीएमएल टूल है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट में, मैं कर सकूँ तो अटैच करने का ऑप्शन रहता है क्या?
या फिर ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट में या अमित जी को शेयर कर दूंगा ये वाला, तो वो आपको शेयर कर देंगे। हाँ, नहीं खुल गया डेस्कटॉप, मैं आपको ये वाला दे देता हूँ। ये HTML में आपको दे दिया। अब आप इसको चाहे तो आराम से कस्टमाइज करिए अपने हिसाब से, जो आपको करना है कस्टमाइज करिए। हाँ, आप आराम से फॉन्ट साइज, कलरिंग वलरिंग जो करना है आप इसमें आराम से कर सकते हैं। अम्म, आपने डिजाइनिंग कलरिंग सब कैसे किया, कैसे? डिजाइनिंग कलरिंग ऐसे किया था सर, बस मैं जब मैं डाउनलोड होके आ रहा था तो मेरे को कलर पसंद नहीं आया था, मैं इसको बस बोल दिया कि मेरे को थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मेरे को वाइब्रेंट लुक चाहिए, मे बी बैकग्राउंड में मेरे को ब्लू कलर करके चाहिए, तो वो आ जाएगा। So we can take the question answer round. If anybody has any question, then they can type on the chat box so that we can move into the question answer round. मीनवाइल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन फॉर द प्रॉम्प्ट पर्पस आप वो अगर डाल दो इन चैट बॉक्स, सो दैट फॉर देयर रेफरेंस दे कैन हैव अ प्रॉम्प्ट एंड ऑल विद देम। वो मैं डाल दूंगा, आई डोंट माइंड, बट लेकिन बेस्ट यही रहेगा ना कि, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैं डाल देता हूँ, आई डोंट माइंड। बट एटलीस्ट जो एकदम ही बिगिनर है ना, तो उनके एक रेफरेंस पर्पस के लिए दे कैन हैव समथिंग विद देम, देन दे कैन प्ले अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। सो जो ठीक है, फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट है, इफ यू कैन पुट इट सो दैट दे हैव ठीक द है, मैं डाल रेफरेंस। देता हूँ अभी चैट में। ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया था। कॉपी, कॉपी, चैट, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया है ये, मैं ठीक है, इसको वो ठीक आई एम कर श्योर पार्टिसिपेंट उतना कर लेंगे। नहीं नहीं, वो भी कर देते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। मैं ट्राई कर रहा था बट हमसे हुआ नहीं। एक्चुअली ये जूम शेयरिंग से आई एम नॉट वेरी मच इक्विप्ड विद, तो इसलिए थोड़ा सा इशू था स्टार्टिंग पे। मैंने वो भी डाल दिया है। ओके, सो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? सर आप शायद होस्ट पैनलिस्ट में डाल रहे हो, कैन यू जस्ट पुट इट टू एवरीवन? ओह, तो एवरीवन, मैं पकड़ के कॉपी एंड पेस्ट, डन। So I guess the session was so fruitful and well explained कि there are no such questions as such. And since again it's a tool जहाँ पे we have to have a hands-on, so the more the participant will do, I'm sure the more benefit they can derive out of it. एक चीज अच्छा, और थी कुणाल, sorry हाँ, Sunny, what we can do is like I will also love to have a conduct another follow-up session for this, जहाँ पर by using the macros और VBA code we can convert a specific format, चाहे किसी भी टैली से डाउनलोड हो रहा हो या अपना 2B का हो, into the template we want। तो वो एक मैक्रो यूज करके सो दैट द पार्टिसिपेंट कैन रन द मैक्रो एंड वो बाय डिफॉल्ट उस फॉर्मेट में आ जाए ऑफ द रिस्पेक्टिव 2A या फिर टैली से जहां से भी बुक्स आ रहा है, जो फॉर्मेट में हमको चाहिए। सो दैट विल आल्सो सेव द टाइम कॉपी पेस्ट का एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई थिंक आराम दैट से। आल्सो वी कैन डू। नहीं नहीं, वी कैन डेफिनेटली प्लान दैट। और उसके लिए क्या करना रहेगा ना, थोड़ा टाइम भी आपको लेकिन चाहिएगा, बिकॉज व्हाट आई वांट ना, मतलब मेरे को पर्सनली ये अच्छा रहता है कि जब मैं कुछ दूं तो प्रॉपर वो पार्टिसिपेंट्स लोग खुद से ही फिर वो ट्राई करें। Definitely. नहीं नहीं, I totally understand, sir. And there is another request from Brijesh Kumar Srivastav ji कि let's do one more session for the income tax. So, sir, your point is noted, and I promise we'll do another session on the income tax for sure. So, अच्छा, कैन कैन आई गेट वन मोर मिनट प्लीज? मेरे को एक चीज बताना था, वो मैं मिस कर गया। हाँ, कैन आई गेट वन मोर मिनट प्लीज? हाँ प्लीज, थैंक यू। जस्ट इन केस अगर आप लोग के पास पेड वर्जन अगर नहीं है फॉर देम, अगर आप लोग वो यूज नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, पेड वर्जन आप यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्जन जो मैं आपको दिखाया ChatGPT, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका 3-4 प्रॉम्प्ट के बाद में हो सकता है कि आपका सेशन एक्सपायर कर जाए। जैसे हम लोग अभी ट्राई किए, तो हमारा 3 या 4 बार में HTML टूल बन के रेडी हो गया। मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आपको जो इनकम टैक्स वाला दिखाया है ना अभी अपना HTML टूल, उसमें मेरे को 28 अटेम्प्ट लग गए थे। ठीक है, तो या तो ये ChatGPT का लर्निंग लेवरेज है कि वो 3-4 बार में दे दिया, या तो अब की बार उसने मेरा प्रॉम्प्ट को ज़्यादा अच्छा समझ लिया। वट एवर द केस इज, आपको क्या करना है, अगर आपका
अगर आप पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपका जो भी कोड जनरेट हो रहा है या फिर रॉन्ग HTML भी अगर जनरेट अगर हुआ है, तो उस HTML का एज ए बैकअप आप उसको रखिएगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट सेशन जब आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे, तो आप वो कोड उसको अपलोड कर देंगे, तो क्या है, फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा नया सेशन। तो आपका जो पुराना सेशन का जो 4-5 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो भी आपका मेहनत रहेगा, वो आपका सेव हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, एंड the floor is handed over to Amit Agarwal ji once again. Thank you so much, sir, for this fantastic presentation and explanation on the topic. And I thank you on behalf of EIRC and all the attendees of this session for sharing your knowledge and expertise with us. We really appreciate you taking the time to give hands-on experience to our participants about the automation of GST reconciliations. And I'm sure everybody must be found it incredibly helpful. So thank you so much once again, sir, on behalf Thank of you, thank you, IRC, myself, Amit Agarwal, and all the participants for the time and expertise. And I'm sure we hope to collaborate again within might be a few sessions to take care of the participant demand. And we'll meet you again in the future. And to all the participants, let's stay tuned for Monday, Wednesday, and Friday from 5 to 6 for another session of the Golden Charcha with another speaker on another topic. So see you people again on Monday at 5 o'clock. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much.